Good morning, student. Today I am going to tell you about the exercise 12.2 of the class 9th Heron formula. Okay. So the question is first question. What is the first question? A park in a shape of a quadrilateral. This is a shape of a quadrilateral A B C D. A B C and D. Okay, and has angle C. This angle C is the 90 degree, and AB side is 9 meter given, BC is the 12 meter given, and CD is the your 5 meter given, and AD is the 8 meter. How much area does it occupy? That means we have to calculate the area by using the Heron formula. First of all, we have to construct constructions when we join point B to D. Okay, this is the construction. So then here two types of triangle will be formed. One is the ABD and second is the BCD. Okay, so let's start. When we add the area of these two triangles, then we have to calculate the we can find the area of a complete ABCD quadrilateral. So let's start. Okay, so we know that angle C is the 90 degree, that is the given. So then when we find the BD, because triangle BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ से हम बी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज़ द बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम प्लस सी डी स्क्वायर. ओके, तो हेयर then BC is the 12 centimeter 12 meter given, plus CD is the 5 meter is given. When we square 144 plus 25, it becomes the 169. Then BD is equal to 100 of 169, it is the 13 meter. Okay, BD is the 13 meter. Okay बच्चों, तो then area of BCD, area of BCD, area of BCD, triangle BCD, which is equal to half of base into height. This is the formula for the right angle triangle. So here 1 by 2 into base. Base is the, yes, tell me, we take here the 5. Okay, and the your height is the, suppose we take the 12 meter. So then we solve it, 2 6 is 12, and that is the 30 meter square. Okay, the area of the triangle BCD is the 30 meter square. Now in triangle ABD, then AB is equal to 9, BD is equal to 30, sorry, BD is equal to 13 meter, and AD is equal to 8 meter. Then first of all we can find the semi perimeter S. A plus B plus C divided by 2, it becomes the 9 plus 13 plus 8 divided by 2, it becomes the 30 by 2 means 15 meter. Semi perimeter becomes the 15 meter. Then by using Heron formula, so what is the Heron formula? Area of triangle ABD, area of triangle ABD is equal to S into S minus A, S minus B, and S minus C. ठीक है, तो here when we take the value of S is the 15 into S minus A. 15 minus A is the 9, so that is the 6 into 15 minus 13, that is 2, and 15 minus 8, that is your 7. Okay, it becomes the 7. When we multiply this, then it becomes the
then it becomes the under root of that is the 1260. Okay, and when we find the square root of this 1260, it becomes the approximate 35.5 meter square. That is the approximate. Okay, so then area of the complete quadrilateral, then area of quadrilateral A B C D, it will be equal to the area of triangle BCD plus area of triangle ABD. Okay, so then what is the area of BCD? This is the area of BCD is the 30 meter square is given, and area of ABD, that will be the 35.5 meter square. When we add both these area, so it becomes the 65.5 meter square approximation. Okay, this is your equation first. Next, equation number second. Okay, equation second. Question number second. What is the question second? Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter. This AB is equal to, in diagram, 3 centimeter, and BC is the 4 centimeter given, and CD is the, this is D point, CD is the 4 centimeter, and DA is the 5 centimeter. Find the AC and AC is the 5, AC is the 5 centimeter. तो we have to find the area of a quadrilateral ABCD. हमें इस quadrilateral ABCD का क्या निकालना है, एरिया निकालना. तो देन क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम एक ABCD एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. कंसिडर ट्रायंगल ABC. हम ABC ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ जो AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसमें AC का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ से फिर आपका AC का स्क्वायर क्या आ रहा है ये देखते हैं. AB इज़ द 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC इज़ द 4 16. तो AC इज़ द का स्क्वायर इज़ द 25. Okay, and AC square, then AC will be is equal to 5. Okay, तो then it becomes the right angle triangle. ये क्या है, ये एक right angle triangle बन गई. Okay, तो then area of ABC, therefore area of triangle ABC. ABC triangles का एरिया कैसे निकलेगा? तो फार्मूला इज द 1/2 बेस इंटू हाइट, बिकॉज दिस इज द फार्मूला फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ से 1/2 व्हाट इज़ द बेस, बेस आपका ए बी है, इसमें ए बी प्लस हाइट इंटू में हाइट इज योर बी सी. व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ दिस ए बी, 1/2 ए बी इज द 3 and BC is the 4, and when we solve this 2, and that is the 3 to the 6 centimeter square. Okay, now in triangle ACD. अब ACD ट्रायंगल में हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे. S इज़ द सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2. तो यहाँ से हमें A पता है 5, B हमें पता है यहाँ पर 5, एंड C है 4 है, एंड डिवाइड बाई 2. तो ये आपका 14 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका, इट बिकम्स द 7. ओके, तो देन बाय यूजिंग द फार्मूला of the Heron formula, using Heron formula,
क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या आ जाएगा, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके बच्चों, तो यहाँ जब पुट करोगे क्या आ जाएगा, S की वैल्यू 7 इंटू में S माइनस ए है आपका, तो 7 माइनस 5 2 एंड 7 माइनस 5 इंटू में 2 एंड 7 माइनस सी इज़ द 4, तो इट इज़ 3। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 एंड 14 6 जा, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू में दैट बिकम्स द 4 इंटू में 21। ओके, तो ये 4 का आपका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 ऑफ द अंडर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये और हमें ये पता है यहाँ 21 जो अंडर रूट ऑफ 21 की वैल्यू है वो कितनी होती है, वो हमें ये होती है अंडर 21 की वैल्यू 2 इंटू में 4.583 होती है अंडर 21 की वैल्यू। ठीक है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9.166। ठीक है, 9.166 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लेते हैं जब तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो 9.166 है, तो इसको 9.2 हम मान सकते हैं क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो इसका एक अगला इंक्रीज हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेट में सेंटीमीटर स्क्वायर इन अप्रोक्सीमेट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, ABCD, ये वाली जो आपकी ABCD है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, तो ये हो जाएगा, जब हम इनके एरिया को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC हमने निकाला था 6 था प्लस में, और ये एरिया ऑफ ACD अभी निकाला हमने 9.2, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 15.2 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। इस एक पेपर से एक एरोप्लेन का एक पिक्चर बनाती है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, जो पेपर यूज करके जो बनाया है एरोप्लेन का जो फिगर बनाया है, इसका हम क्या निकालना है, एरिया, टोटल एरिया निकालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपके 5 मतलब पार्ट्स है। वन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन पार्ट, and this is rectangle is the second part, and this is your bottom part is the third part, and this is your fourth part, and this is your fifth part। जब हम क्या करेंगे, इन सभी फिफ्थ पार्ट के एरिया को हम ऐड कर लेंगे तो ये कंप्लीट जो आपकी एरोप्लेन का जो पिक्चर्स है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से हम पहले जो फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम फर्स्ट फिगर, जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है, फ्रॉम फर्स्ट फिगर दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो फर्स्ट फिगर है वो आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस में आप जानते हैं दे 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो गिवन A इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर, B भी 5 सेंटीमीटर है, और C आपका क्या है, जो ये बेस है ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से फिर सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर
पेरीमीटर जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए प्लस बी सी यानी कि 5 + 5 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 11/2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ से फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग हीरोन फार्मूला हम क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला यूज कर रहे हैं तो उस हीरोन फार्मूला में आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो मार्क्ड वन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो किसके बराबर हो जाएगा, बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला एस इन माइनस ए एस माइनस बी सी, ये हो जाएगा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, एस चूँकि 5.5 इंटू में 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 इंटू में 5.5 माइनस 1। ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस तो इट बिकम्स द, यहाँ से आ जाएगा आपका 5.5 इंटू ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस तो इट बिकम्स द when we multiply this तो it becomes 0.5 and okay because this 0.5 2 टाइम्स रिपीट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे स्क्वायर रूट से, तो अंदर कौन बच गया, इनटू में अंडर ऑफ 5.5, ठीक है, इनटू में 4.5। अब इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 0.5 इंटू में आप 55/10 कर सकते हैं, ये 4.5 को आप 45/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि 10 है तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से क्योंकि 0.5 है तो ये बन जाएगा आपका 0.5/10 और इधर से हमारा बन जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स द, पूरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा जो फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल्स की शेप में आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एरिया बन जाएगा बाय यूजिंग द हीरोन फार्मूला। अब क्या करेंगे हम, जो रेक्टेंगल पार्ट है इसके अंदर ये वाला आपका सेकंड जो फिगर दिखा रखा काउंटिंग में, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट जो सेकंड है, ठीक है, उसका एरिया निकालेंगे। उसका आपको पता ही है एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना है इसकी लेंथ, दैट विल बी यहाँ से है आपकी टोटल ये है 6.5 तो इसकी वो होगी लेंथ और ब्रेथ इसकी 1 है तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 1 तो ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड आपका पोर्शन दिखा रखा है इसके अंदर, जो थर्ड आपका क्या है, ये वाला एक ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जो थर्ड आपका पार्ट है इस एरोप्लेन में, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये इस तरह की शेप का है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लाइक इस तरह बना लेंगे, ये दिख ही रहा है, ये ऐसे हमने थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर ली और ये आपकी पैरेलल साइड है, ये भी आपकी पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे पीछे ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया है, ठीक है।
ये इस तरह की बन गई, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर गिवन, दिस इज डी, दिस इज योर सी, एंड दिस इज योर बी, एंड दिस इज योर एफ, एंड दिस इज योर ई, एंड दिस इज योर ए। और ये टोटल लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है 2 सेंटीमीटर, ओके। और ये 1 सेंटीमीटर है जो कि इस डायग्राम में। तो अब ये राइट एंगल बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, तो हमें ये पता है कि जो आपका डी एफ है वो पैरेलल टू सी बी है, ठीक है ना। और डी ई जो है आपका परपेंडिकुलर है ए एफ के ऊपर, ठीक है। और ये हमें डायग्राम से पता भी लग रहा है। तो इसका मतलब जो आपका ये बी सी डी एफ है ना, ये रहा जो बी सी डी एफ, एक क्या है, एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। या आप उसको रोम्बस बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है इसकी इक्वल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकाल लेंगे किसका, ये वाली ट्रायंगल का ए डी एफ का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए डी एफ जो ट्रायंगल आपकी ए डी एफ उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ए डी एफ क्या है, ए डी एफ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही है, 103/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ओके बच्चों। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका जो ट्रायंगल ए डी एफ है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में ए एफ यानी बेस इंटू हाइट, 1 इंटू में जो डी ई, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हाइट है। तो यहाँ से जो डी ई है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो √3/2 के बराबर आ जाएगा। और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.866 है, तो हम इसको 0.9 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2, क्या फार्मूला होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू में जो आपकी ये ए पैरेलल साइड है उनका सम, मतलब कि ए बी साइड प्लस में जो आपकी सी डी साइड है, और इनटू में जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो है डी ई, ठीक है। तो जब इसमें सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में 2 + 1, और इनटू में जो आपकी डी ई है वो 0.9 हमने निकाली है। तो ये सोल्व करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जो ट्रेपेजियम का एरिया है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, ये इस डायग्राम में जो फोर्थ पार्ट है ये वाला और फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो एक का निकालेंगे और दूसरी भी सेम है तो दोनों का डबल कर देंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, बेस आपका इसमें आपको दिख ही रहा है ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू में और इनटू में इसका हो जाएगा आपका जो हाइट है वो 1.5 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ का भी ये सेम आ जाएगा, ये इक्वल टू द फिफ्थ पार्ट के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और दोनों का साइज़ भी सेम है, तो दोनों का एरिया इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया निकाल लेंगे इसका, टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, इस एरोप्लेन का तो किसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो पार्ट फर्स्ट था, फिगर फर्स्ट है, उसका एरिया दे रखा है कितना, वो हमने निकाला था फिगर फर्स्ट का, वो हमारा आया है ये रहा, यहाँ से हमारा फिगर फर्स्ट का आया है एरिया, इट बिकम्स द 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ 2.5,
ठीक है। प्लस में सेकंड फिगर का हमारा आया है 6.5, प्लस में जो थर्ड फिगर था हमारा उसका 1.4 है, प्लस में अभी ये फोर्थ और फिफ्थ का 4.5 प्लस 4.5 आया है। ठीक है, तो ये हमारा जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 19.4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, ओके, एंड द सेम एरिया if the sides of the triangles are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter and the parallelograms stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। हमें क्या करना है, इसमें जो आपका पैरेललोग्राम है उसका हाइट निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, हमें जो साइड्स है ट्रायंगल्स की, गिवन क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी है, दैट इज़ 26 सेंटीमीटर है, एक आपकी 28 सेंटीमीटर है और थर्ड है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से फिर एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 26 प्लस के आपका आ जाएगा 28 प्लस के 30 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 84/2, इट्स मीन 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना हमें, यूजिंग हीरोन फार्मूला, हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। क्या है हीरोन फार्मूला बच्चों, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो एस हमारा 42 आया है और 42 माइनस 26 है, ए हमारा 26 था, इंटू में 42 माइनस हमारा बी है 28 एंड 42 माइनस सी हमारा 30 है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा 42 इंटू में 16 और इंटू में हमारा 14 इंटू में 12 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि अब ये 16 है तो ये 14 होता है, 42 होता है 14 इंटू 3, 16 होता है 4 इंटू 4 एंड ये अगेन 14 है और ये आपका 12 को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये 14 और ये 14 मतलब एक 14 बाहर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट के रूप में, और ये 4 और ये 4 है तो इसका मतलब है एक 4 भी आ गया बाहर, तो ये 3 और ये 3 इसका मतलब एक और 3 है, ठीक है, बाहर आ गया। तो बाकी एक अगर हम देखें तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है 4 3 और ये हो गया 4 4 इंटू ये 14 इंटू 4 इंटू, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा इंटू में 2 का, ठीक है, 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 336, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना हमें एरिया क्या बोलता है, ये सेम बेस दे रखा है और सेम एरिया है, तो किस किस का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन हमें। तो अब क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 336 हमने निकाला है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में आपका जो हाइट होती है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला, दोनों को रख देते। तो यहाँ 336 इज इक्वल टू बेस आपका पैरेललोग्राम का 28 दे रखा, हाइट हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी। देन एच बिकम्स द 336 डिवाइड बाई 28, इसको काटेंगे तो ये हमारा 12 पे जाएगा, क्योंकि ये 28 12 जो आपका होता है 336, ये आपका हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यही हमें निकालना था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ वाला कौशिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।